Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about human skeleton system, the structure of bone, for second year class biology. First, to discuss about their learning objectives, we want to understand the term sport and movement, and also discuss about the human skeleton system and their parts, and basically focus on the structure of bone and find out their composition of bone. Now, to understand the human skeleton system, first we discuss about the sport and movement. The word sports means strength. It gives strength to our body, basically consider as a sport. So skeleton system gives strength to our body, that's why it is play a role as a sportive in our body. Movement. The word movement means to move part of the body. The human skeleton system is also responsible for the movement of the organism, the movement of the different parts of our body. For example, we can move our hand with the help of the bones, and we can walk, we can run. So these all activities has been happened because of skeleton present in our body. So that's why human skeleton system provide sport and movement in our body. How we can differentiate the movement and locomotion? So the word locomotion means the movement of whole body from one place to another place is called locomotion. When we move our organ, for example, we move our hand, we can move our legs. So these movements, basically these are considered as a movement. While we move from one place to another place, then this is called locomotion. So the skeleton help us to provide support in our body, also provide movement in our body, and also are responsible for the locomotion of whole body from one place to the another place. Now this is about the sport and movement, and which brings about by the human skeleton system in our body. Now we discuss the human skeleton system. The human skeleton system basically consider the part of bones and cartilage. Without it, our body is just like a mass of flesh. So the human skeleton system consists two parts, that is bone and cartilage. If we can remove the skeleton system in our body, then our body is just like a piece of flesh. So this is all about the human skeleton system, and it gives support and also brings movement and locomotion in our body, and it has two basic parts, that is bone and cartilage. Now we discuss about the bone. Bone is a hard and connective tissue. It is present in the matrix of our collagen. बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हम क्या कह रहे हैं बोन, और ये क्या है स्केलेटन का पार्ट है. ये हमारी जो हड्डी अगर आप देख रहे हैं, ये पूरी बोन है. तो इस स्ट्रक्चर को या हम अब देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स मौजूद हैं. जो आपको एंड्स में पार्ट मौजूद होते हैं, जो ये प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड पे जो मौजूद होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस. तो इसका मतलब है ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, ये डिस्टल एपिफाइसिस है, और जो आपके ये दरमियान में जो हड्डी का हिस्सा होता है उसे हम डायाफाइसिस बोलते हैं. जो आपके पास एपिफाइसिस हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं, स्पॉन्जी बोन सेल्स. ये स्पॉन्जी बोन्स के जो हैं ये क्या बने होंगे, आपके पास जो हैं एपिफाइसिस ने कंसीडर किया होता है. ये जैसे स्पॉन्जी बोन्स मौजूद होता है, पोरस स्ट्रक्चर और कैविटीज़ मौजूद होती हैं. फिर ये जो डायाफाइसिस है, डायाफाइसिस के अंदर आपके पास ये जो हिस्सा है एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम, बेसिकली ये इधर मिनरल्स और
आपके पास न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होते हैं एंड दैट आर द पार्ट ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन डिपोजिशन, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स जो आपके पास इधर जो मैट्रिक्स है, ये जो हिस्सा है इधर आपके पास एंडोस्टियम और जो है पेरिटियोस्टियम है, ये बेसिकली क्या है, आपका प्रोटीन का पार्ट है। और जो है इधर प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी और इधर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं डिपोजिशन हुई होती है। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये जो आउटर साइड पे जो आपको वाइटिश मटेरियल नज़र आता है, ये हार्ड होता है और ये जो है ये कॉम्पैक्ट बोन का बना होगा। तो अब हम देखते हैं कि बोन्स के कौन से दो पार्ट्स इसने कंसीडर किए हुए हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। तो अब हम देखते हैं कि हम इनको में दरमियान कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन है, आपके पास जो वाइट और हार्ड मटेरियल है, ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट बोन। वाइटिश इन कलर, हार्ड होता है। इसके पास नो ब्लड वेसल, किसी किस्म की भी ब्लड वेसल यहाँ पे मौजूद नहीं होती। और इन दिस पार्ट कैल्शियम फॉस्फेट जो है ना डिपॉजिट हुए होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ हार्ड पार्ट ऑफ द बोन। अगर हम स्पॉन्जी बोन की बात करें, स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, स्मॉल कैविटी पोरस क्या है मौजूद है। ये आपके पास स्पॉन्जी बोन है, यहाँ पे क्या है, कैविटीज़ और पोरस लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं इस रीजन में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसको हम रेड बोन मैरो भी बोलते हैं। ये जो रेड बोन मैरो है क्यों है, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल। ये आपके क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स है एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रेड बोन मैरो सेल्स। और इनके पास क्या ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इस वजह से क्या है, इनको जो है ना यहाँ पे ब्लड की क्या है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी होती है। तो ये तो था डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बोन सेल्स जो हैं वो कौन से मौजूद हैं। अब आपके पास ये बोन मौजूद है, इस बोन्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के बोन सेल्स मौजूद होते हैं। एक को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स, एक को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और एक को हम बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। और जो आपके पास ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स है, बेसिकली ये क्या है, स्टेम सेल्स हैं। अब इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले आपके पास जो सेल्स हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, दीज आर द इमेच्योर बोन सेल्स एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल्स। ये इमेच्योर बोन सेल्स होते हैं और ये इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये जो लफ्ज़ ऑस्टियो का मतलब ही होता है बोन्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो वो सेल्स हैं, जो इमेच्योर सेल्स हैं, जिनसे जो किसी डेवलप्ड हो रहे हैं, जिससे बनेंगे स्टेम सेल से बनेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि दूसरे हमारे पास जो टाइप के सेल्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। जब ये वाले सेल ऑस्टियोब्लास्ट बिकम मैच्योर, दे बिकम द ऑस्टियोसाइट्स, ये ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं एंड दे डिपॉजिट द फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये क्या करेंगे, इनमें ये स्टोर हो जाएगी फॉस्फोरस और कैल्शियम, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये मैच्योर सेल्स कहलाते हैं। यही आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट में। और ये मैच्योर कब होते हैं, जब ये मैच्योर होंगे तो इनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिपोजिशन हो जाएगी। और ये आपके जो हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ बोन है, जो हड्डी बनाने का प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व होंगे ऑस्टियोसाइट्स। फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरे किस्म के सेल हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। अब बेसिकली जो ये ऑस्टियोक्लास्ट हैं, दीज आर कॉल्ड द बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ये आपके वो सेल्स हैं जो क्या करते हैं, जो बोन को क्या करेंगे, अगर आपकी बोन्स में जो है कमज़ोर हो रही हैं या कोई रेड ब्लड सेल्स हैं, जो अभी आप समझें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको क्या है, या ब्लड सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, ये जब जैसे फ्रैक्चर हो जाता है उस हड्डी को रिपेयर करने हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो आपके डेब्रीज हैं, जो आपकी डेब्रीज हैं उनको ये सेल्स क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। तो इसलिए ये जो आपके सेल्स कहलाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल्स, और इनको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये तो आपके बेसिक थे जो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स या जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, दे आर द एम्ब्रियोनिक सेल्स
विच डेवलप अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये जो सारे सेल्स हैं, ज़ाहिर बात है ये किसके से बने हुए, स्टेम सेल से राइज करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल जो होता है विच डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो डेवलप होगा उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलेंगे। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और इनकी वजह से क्या होता है, नए सेल्स बनते हैं। और जो आपकी बॉडी के अंदर जीन थेरापी जो होती है वो भी जो है वो स्टेम सेल्स में होती है, क्योंकि एवरी बॉडी हैव देयर ओन स्टेम सेल्स। हर बॉडी के पास अपने स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। इस वजह से क्या है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स में इन्वॉल्व है, दैट्स वाई जीन थेरापी भी जो है वो हम स्टेम सेल्स में करते हैं। और ये बात याद रखनी है कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं विच डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये तो हमने ये तो सारी बोन सेल्स के बारे में बात होगी। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में पढ़ा, जिसमें उसके हमने दो पार्ट्स को डिस्कस किया। एक तो हमारे पास आपके पास स्पॉन्जी बोन थी और एक कॉम्पैक्ट बोन थी। इसी तरह साथ साथ हमने बोन सेल्स पढ़े। जो बोन सेल्स में हमारे पास सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट थे जो इमेच्योर सेल थे, फिर उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स थे जो मैच्योर होकर ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट्स बन गए थे। और उसके बाद हमारे पास बोन डिसॉल्विंग सेल्स थे जो फ्रैक्चर में डेब्रिस रिमूव करने में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये स्टेम सेल्स को डिस्कस किया जो हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं। तो आज तो हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बोन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के में कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।